A very warm welcome and namaste to all. Today, in this interactive and a lively session, we are here with us one of the most distinguished and also a seasoned civil servant. We have Srimati Gitanjali Khandelwalji with us, and she had been able to carry on the ideas, the legacy, the values that we speak about in everyday life. We not only see those things directly when we are interacting with society, but otherwise also when we want to inculcate those values and those themes which help us to grow as an individual, at societal level, and at the national level. There had been lot many opportunities with all of us which come to us every day in our personal lives, in our professional lives, and everywhere else also. But the question arises that how we are able to convert and we are able to carry on those primary and I must say those valuable ideas which make a person grow and which make a person move forward in life. So when we speak about these broad themes, then comes the question, what is our choice in terms of career? What is our choice in terms of making ourselves comfortable as much time as we are spending on the planet Mother Earth? Going with the basic idea, we would like to start and also share the kind of inspiration which as a person you get to move forward with obstacles that we see around, and that inspiration which had helped you to reach till here, keep you rejuvenated, keep you in a balanced way to take right decisions, those basic inspirational values, because I believe basic values are always the foundational pillar, and then comes specific values. So my first question to you is that to keep rejuvenated oneself, to keep taking right decisions, to have a multitasking role, especially in these times when even examination and life is also demanding such kind of questions, especially being a woman, because in India, societally, socially, and otherwise also, women, I won't be able to, completely do justice with that, but they had to, make more effort for the same thing. And that is, I think, not feminism, but I believe the kind of structure that is there, the kind of ideas that is there. So the basic values and basic ideas which inspire you to be ready to go for something which has not been challenged till now. What makes you move forward? You're not audible, please. मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जो हमारी अभी तक की एक अपब्रिंगिंग होती है वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, और वो जो बेसिक वैल्यूज हम अपने स्कूल से और फैमिली से सीखते हैं वो हमें आगे तक काम आती है। अभी भी अपनी सर्विस में जब भी मुझे ऐसा कोई डिसीजन लेना होता है जो ट्रिकी होता है, वेयर आई नीड टू थिंक अगेन, आई ऑलवेज गो बैक टू माई वैल्यूज। कि अगर मेरा कंसाइंस मुझे बोल रहा है कि यही सही है, देन आई टेक द डिसीजन, देन आई डोंट लिसन टू एनीबडी एल्स। क्योंकि जब आप कहीं कंफ्यूज हो, कहीं ट्रिकी डिसीजन आपको लेना हो, कहीं आपको ऐसा लगे कि अब थोड़ा सा आप एथिकल डायलेमा में आ गए हो, तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि आपका जो कंसाइंस बोलता है वो सही बोलता है, और प्रैक्टिकली मैंने उसका अनुभव भी किया है। और रही बात कि कितना आप कैसे मोटिवेट होते हो, कैसे आप रिजुविनेट होते हो, तो मैं सर्विस में आई हूँ, मेरे अंदर एक पैशन था, ऑलवेज दैट पैशन, दैट फायर वाज देयर कि मुझे लोगों के लिए काम करना है। तो दैट इज द ओनली रेजुविनेशन मोड, दैट इज द ओनली मोटिवेशन फॉर मी, कि जब भी मैं कुछ करती हूँ और लोगों को देखती हूँ कि उनको फायदा हो रहा है, people are gaining from it, I am able to donate a little bit to somebody or society, that gives me more motivation to work further. That's wonderful and amazing. So if we go little back and then we see you had a very illustrious and distinguished experience, and what should say that it is an amazing I should say time span that you spent even in Indian Army, one of the most decorated and one of the most demanding, I should say, those who are lucky, those who get to serve actually in army. I'm not talking about any part of positions and all that. So first, when you
were become part of it. The molding started from there. So can you please share with us the kind of ideas that were running through your mind when you entered into the Indian Army and then you moved forward, and how it actually made you more focused, made you more committed than which ultimately culminated into getting for civil services only? Yes. First of all, I would say Indian Army is a very beautiful organization, and I think it is one of the most organized setup. It is a setup which is self-sufficient. So when you grow in such an organization, you tend to groom your personality. Mhm. If we go back to training days, from day one when you go for SSB selection, I feel it is the toughest. It Ji, is the most planned. I I have see. been to the two most difficult interviews of our country. One is SSB and other one is UPSC. So I would say interview wise, SSB is much more tougher than what UPSC interview is. Agreed. SSB interview is very organized, very planned. They check you in and out, they scan you in and out. It is very difficult to hide your weaknesses. Mhm. You just cannot hide them because it is very scientifically planned. You cannot bluff. Yes. Maybe somewhere else in interviews you can bluff, you can give fundas and theories, but there, since it is very much scientifically designed, you are not able to bluff. So getting in SSB, it's an achievement in itself. It gives you a sense of satisfaction and pride. And it is something like day one you appear in an interview, 200 people are appearing in day one, and at the end of the day all 200 are washed out. No one is selected, nobody goes to day two, or maybe you are the only one going for the day two. Then a new batch joins in with you, and finally at the end of the SSB interview, when it's the fifth day, out of 1,000 candidates, maybe it's one or two people who are selected. So it's a sense of achievement. I agree. When we go to academy, it's a different world altogether. I mean, you step into a very different world, and it is damn disciplined and very organized, and with so much of vigor and energy, and a feeling of serving your nation. So that academy grooms you so well, it works on each and every part of your personality. If you have a particular weakness, the instructors over there pay so much of attention on you that that particular weakness is removed. So I have been in Indian Police Service Academy also, but this is what I feel the difference in Indian Army training and Police Academy training, that you are focused one to one. So Agreed. they don't want to leave anything, any stone unturned to groom you. So when I came out of academy, I found lot of change in me. After 1 year of training, when I went back home, whosoever was meeting me, they were saying she's a different person altogether. What I will feel, people were telling me that you have changed totally. And I am really thankful to Indian Army that they have groomed my personality so well. तो जहां तक बात आती है डिटर्मिनेशन की, बात आती है मेंटल स्ट्रेंथ की, वो उससे ज्यादा कहीं टेस्ट हो ही नहीं सकता जितना जी। मेरा इंडियन आर्मी में टेस्ट हुआ है. और अगर मैं वहां तक पहुंची हूँ ट्रेनिंग को कंप्लीट करके, तो मैंने अपने को उतना मेंटली स्ट्रांग प्रूव किया है. आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल. जैसे आपको बोला जाता है कि आपको 42 किलोमीटर की रन करना है, यू हैव टू वॉक फॉर 42 किलोमीटर्स in that particular combat uniform, those long heavy big boots, and with a big rifle in your hand, and 25 kgs of load on your back. And it is a summer weather of Chennai, and raining also in between, and you are just walking in day and night, you are walking, and Right. you are walking as a team. Mm. You are in a group, so you are taught not to leave anybody behind. Even if you are a good you are healthy, you are fit, but you cannot leave anybody behind from your group. You have to take everybody along. So this is how it is taught to you. You cannot give up. Your body gives up. I agree. Your body is not able to walk for 42 kilometers. It is your mind which is taking you. Your Yes. body has given up at 21 kilometers, but still you are not stopping. You are just going. So this mental determination, this mental strength, I realized there.
So Amazing. we all have a lot of strength, and it is with everybody. All the aspirants who are preparing for anything in life to achieve, they all have that strength. The only thing is we need to realize that we have it. Once we realize it, we encash it. Once you also shared, I remember that even within army, then you were already moving forward and planning for the, you were thinking that yes, my next. Otherwise, you could have easily settled down in a different way. A lot had been achieved by this time only, because I believe in India also there will be not too many examples would be there that we find. Even if we see the legacy of Indian civil and Indian police services, also all India services too, for that matter, that were distinguished personalities from Indian Army, or for that matter, even from defense forces. They are first into defense forces and then they are coming directly. Not I'm talking about later on lateral entry, or I'm not talking about any kind of. There are so many kind of appointments, you know it very well, when we speak about the central government, and also different kind of spheres are there. But then there are very few examples where such kind of distinguished career leading to another ladder altogether, and both of them are completely dedicated towards the serving society, as you just said. So I remember once you shared that you are so passionate about it, but without compromising the duties, without compromising the work ethics. That is the beauty. Everybody wants something more, but the question arises, what you have already in hand, are you compromising it? What you already have, are you neglecting it? But you did not do so. So can you please share that, even writing those long letters and even passionately putting up that I want to move further, I want to go for this. You created avenues for yourself without compromising on the existing duties or existing responsibilities. So that moral compass, can you please share on that? Yes. When I was in Indian Army, I decided because there was no permanent commission for Correct. women officers. So it was like I would serve for 5 years with an extension of further 5 years and last extension of 4 years. So it would have been just 14 years of my career in Indian Army. Then I would have been released. So that time I took a conscious decision to switch over at a time where I can have a better option in my hand. So in 5 years of my service, I decided to write civil services examination. So when I was posted in Leh Ladakh, that time I was doing a little bit of effort, like reading newspaper, reading magazines, reading those basic books of world history, or maybe the world scenario of polity, like that, Agreed. world political scenario. So that time it was very difficult for me to arrange newspapers in Leh Ladakh. When Agreed. I had to ask for an Hindu newspaper, nobody was delivering it there. Then I spoke at the headquarters of Hindu and said, I want a subscription here in hard copy. So somebody told me that we don't send it outside India. I said, I'm not outside India, I'm within India. Leh Ladakh is very much part of our country. So it is that remote place. And I used to get newspaper after 3 to 4 days of being published. So I used to read 4 days old newspaper, and this is how I was doing. and and So and we are talking about a time when such bandwidth, such broadband, the connectivity that we are talking right now, no, it is God's no. grace and also the efforts made by the country. Otherwise, it is next to impossible. When I was there in Kargil and Budkarbu, there was only one broadband recently established, and we were very happy that we have got some internet. And that used to be at our officers' mess reception in one PC. That is all. So those old days of going to cafe and surfing, that was the scenario there. So you Agreed. go sit in the mess and then you surf and search and do things. And forget about broadband. वहां पे तो नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं Network. होता था. बिल्कुल सही मैंने बात. पहली बार लाइफ में ऐसी जगह देखी जहां मोबाइल तो आपके हैंड में है, बट इट डजंट हैव सिग्नल्स. कोई डंडा नहीं है जिसमें सिग्नल आ रहा हो. और ऐसी जगह पे मैं पोस्टेड थी. वहां पर एक बीएसएनएल का टावर था जी. और वो जो एम्प्लॉय था, उसका जब मन किया वो आएगा, जनरेटर में डीजल डालेगा और उसको ऑन करेगा, तो आपका नेटवर्क आएगा. तो वो कभी बर्फ के दिन है, बहुत बर्फ पड़ रही है, घुटनों घुटनों तक बर्फ पड़ी हुई है, तो उसको तो घर से लेकर आना पड़ता था कि आजा भाई थोड़ी देर जनरेटर चला दे, तो नेटवर्क आएगा तो हम बात कर लेंगे, कुछ कर लेंगे.
तो उस टाइप का वो डिफिकल्ट सिनेरियो था वहां पे। जी, जी, फिर वहां से मैं चाहती थी कि मेरी पोस्टिंग दिल्ली आ जाए, बिकॉज मैं आके पढ़ाई करना चाहती थी, तो मेरे लिए कंफर्टेबल था, बिकॉज इट वाज होम आल्सो एंड ऑल फैसिलिटीज ऑफ स्टडीइंग फॉर सिविल सर्विसेज वाज अवेलेबल देयर। बट समहाउ मेरी वो रिक्वेस्ट कहीं कंसिडर नहीं हुई, एंड इवन आफ्टर दैट हार्ड एरिया ऑफ पोस्टिंग आई वाज सेंट टू चंडीगढ़। oh, So that was again like a heartbreak, that why has it happened to me? agree, But God has His own plan. And now I say I really relish those days of mine in Chandigarh. I think because of that I am here today. So this is how things move. And agree, when I agree. went to Chandigarh, I had a very busy unit to work with, and we were maintaining the logistics of whole Jammu and Kashmir, Leh Ladakh. Everybody's logistics was being maintained by our battalion from Chandigarh. So it was a very busy unit. Our day used to start at 2:30 in the night, and it used to end at 12 in the night. 2:30 in the morning, you can say our day used to start, and 12 night it used to get over. So it was that busy unit. Again, I was like, why this has happened to me? I could have gone to a lighter unit also. How do I study now? Agreed. But if you have that fire in yourself, I think you can make your way. Agreed. And I tried everything. I tried convincing my seniors also, my boss also, that please give me a little relax posting or work so that I can study. This is what I want to do. Everybody used to take it very lightly. That civil services is very difficult. She's just thinking it as a backup career because she want to leave army. So she's taking it as a backup career. So one day my boss called me for a cup of tea and made me understand, see Gitanjali, it is very tough examination, and people from IIT and AIMS are writing this exam. I hope you are aware how difficult it is. You are trying to venture into that scenario. I said, sir, I very much know that, but this is only thing I want to do. So, okay. He was still not very convinced, but he said, okay, you carry on your studies as and when you get time. But no support was granted to me till that time. So I used to do something like get up at 2:30 in the morning and have a cup of tea and sit to study. Then 6 o'clock, there is a morning routine called as PT in Indian Army. Everybody goes for a run and exercise for 1 hour. Yes, yes. So 6 बजने में 5 मिनट पे मैं उठ के अपना पीटी ड्रेस पहन के दौड़ जाती थी कि चलो पीटी में जाना है। वो करके खत्म करके 7 बजे तक आया। 7 बजे आके आपको लगता है चलो फटाफट फ्रेशन अप होके आप अपना न्यूज सुन लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, डिस्कशन सुन लो कोई। By the time you're getting ready, eating breakfast, wearing your uniform, keep on doing this side by side. Then I used to go to office at 8:30 और उसके बाद अपना काम मैक्सिमम एफिशिएंसी लगा के खत्म करती थी मैं कि 12 बजे तक मैं फ्री हो जाऊं, 11:30 तक फ्री हो जाऊं अपना काम करके। और फिर थोड़ा अपना मैगजीन वगैरह ले गए, ईयर बुक ले ली साथ में, मनोरमा रख ली। So these kind of things, कुछ magazines हो गई। I used to find time in my office to study them, so that my work is also not hampered and I get extra time also. Then lunch के बाद आने के बाद वहाँ आर्मी में कल्चर होता है, you come for lunch and then you go back at around 5 o'clock for games. Yes. There are compulsory games you have to play in the evening and then office work also after that. तो मैं लंच नहीं खाती थी, मुझे लगता था मैं लंच खाऊंगी तो मुझे नींद आ जाएगी और मेरे पास वो पढ़ने का टाइम है, तो मैं सिर्फ सैलेड खाती थी या फिर कभी कर्ड खा लेती थी और फिर पढ़ती रहती थी। फिर गेम्स में गए, गेम्स खेला और उसके बाद अपना ऑफिस का काम आधे घंटे में खत्म करा और फिर घर आ गए, फिर आके अपना पढ़ने में लग गए और फिर जल्दी सो गए कि सुबह उठना है। जी। तो बहुत ऐसा बैक टू बैक मेरा शेड्यूल रहता था कि मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। तो जैसे जैसे मेरे एग्जाम्स पास आने लगे, मुझे लगता था आर्मी की सोशल लाइफ बहुत ज्यादा है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वहां, कभी किसी के घर पे गेट टुगेदर, कभी आपके मेस में गेट टुगेदर। सो दैट वे यू लूज लॉट ऑफ टाइम बिकॉज दीज आर लाइक लेट नाइट पार्टीज। तो आप सुबह भी नहीं पढ़ सकते, शाम भी चली जाती है। So I requested my boss कि please आप मुझे थोड़ा excuse दे दो, but army is very rigid organization. For them, party is not like partying. It is a regimental function. Yes. It's a duty. You have to report at so and so time before your senior comes. You have to be there, and you can only leave once your senior leaves. Agreed. So it is that rigid and disciplined organization. Still, I was managing things somehow. Then one day I was totally fed up कि ऐसे तो नहीं चलेगा, अभी चीजें पानी ऊपर से जा रहा है
मेरी तो लाइफ और डेथ का सवाल है, मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे यही करना है, तो अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। मैंने 5-6 पेज की एक लंबी सी चिट्ठी लिखी, सारी फीलिंग्स अपनी उसमें डाल दी। वो करेक्ट। चिट्ठी मैं भी पढ़ूंगी तो मुझे आज भी वो जोश आ जाएगा कि मैंने क्या बिल्कुल। लिखा था उसमें। मतलब आई हैव गूज़बम्प्स इफ आई रीड दैट। पर हम्म। मेरे अंदर उतना फायर और पैशन था। वो चिट्ठी लिख के मैंने अपने बॉस को ऑफिस में जाके बोला कि सर ये प्लीज आप अपने स्पेयर टाइम में एक बार पढ़ लेना। हम्म। तो ले ली उन्होंने, पढ़ ली। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे 1 दिन 2 दिन तक कुछ बोला नहीं। मुझे लगा यार ये क्या हो गया, मतलब ही इज नॉट ज्यादा। रिस्पॉन्डिंग एट हाँ, ऑल। सही बात है। अब क्या करूं मैं। 2 डेज के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहते हैं कि आप नोटिंग पे लिखो दैट यू वांट एन एक्सक्यूज फ्रॉम पार्टीज, यू वांट एन एक्सक्यूज फ्रॉम मॉर्निंग पीटी एंड इवनिंग गेम्स, एंड आई विल अप्रूव इट। एंड आई डिड दैट। मेरे जो उनसे सेकंड नंबर के ऑफिसर्स थे, फाइल उनके थ्रू जानी थी। एवरीबडी रोट नेगेटिव ऑन द फाइल I can that understand. this cannot happen in army. This is setting up like a wrong precedence. Correct. But it went to my boss and he simply approved it with his red ink. Wow. So I still remember, and that was so good on his part. He had the guts to do it on file. आज मैं सर्विस में हूं तो मैं ये रियलाइज करती हूँ कि फाइल पे कुछ लिखना लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है। मुंह से तो कोई कुछ भी बोल देता है, बट उसको रजिस्टर करना, डॉक्यूमेंट करना इन योर सिग्नेचर, इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो आई हैड सो हाई रिगार्ड्स फॉर दैट ऑफिसर। आज भी मैं उनके साथ टच में हूँ और वो इतना प्राउड फील करते हैं मुझसे मिलके, मुझसे बात करके। और मैं सब जगह बोलती हूँ कि आई एम हियर टुडे बिकॉज ही शोड फेथ इन मी। अगर वो उस दिन मुझ पे विश्वास नहीं दिखाते तो आज मैं यहाँ नहीं होती जी। So that was a very like burning midnight oil and fighting with all odds. And no coaching institute was with me. I didn't have time to go because I was working morning evening office, and I didn't have any peer group. उस टाइम पे कोई ऐसा डिस्कशन ग्रुप्स भी नहीं होते थे, ना ऐसा वीडियोस का ज्यादा चलन था। तो आई वाज प्रिपेयरिंग एट माय ओन। तो मेरा मोटिवेशन और सब कुछ मैं अपने आप में ही थी। तो that was actually a tough time. जब आप पहुंचे, जब आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भर दिया, सेंटर मिल गया, तो उससे जो पहली रात थी, जो प्रीलिम्स आपको देना है, उससे जो उससे पहले नाइट होती है, देयर इज अ नाइट बिकॉज मॉर्निंग पेपर इट हैपेंस एंड इट इज हैपनिंग इन 2 शिफ्ट्स। एक सीसैट है अभी और एक है आपका प्रीलिम्स। तो मतलब जनरल स्टडीज, जिसको हम जनरल स्टडीज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। सो डिड यू स्टडी टिल मॉर्निंग और यू जस्ट कंप्लीटेड एंड लेफ्ट इट, और सुबह उठ के फिर से किताब उठा ली और लास्ट मोमेंट तक सेंटर के ऊपर, जैसे हम लोग देखते हैं किताब पे किताब पे किताब, तो या फिर कुछ होते हैं एकदम रिलैक्स्ड हैं। सो व्हाट you did when you are entering into the examination hall for the prelims, when you cracked it, so what exactly was going in your mind? Because I'm aware and I'm sure about the fact that when we are doing something very passionately, we become a microsome, we become a kind of a very very big cosmic power, and we can recall that thing actually carries on within ourselves for a very very long time. So I am sure anybody, for that matter, who is part of the distinguished services somehow little bit here and there, but then people always, they are always able to recall and remember. So आपने कैसे किया? मेरे साथ ऐसा है कि जब तक एग्जाम नहीं आ रहा मैं जी तोड़ मेहनत करती हूँ, पर जब एग्जाम आ गया है तो मैं एक रात पहले पढ़ के उसको छोड़ देती हूँ कि अब तक मैंने जितनी मेहनत करी बस वो हो गई। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो फीलिंग होती है कि अब मुझे आता है। मतलब मैंने अपना बिट पूरा कर दिया है। अब तो अगर नहीं कुछ हो रहा है तो वो मेरी डेस्टिनी है। अब मैं तैयार हूँ एग्जाम के लिए। इस फीलिंग के साथ ही मैं अपने प्रीलिम से पहले सोई थी और उसी फीलिंग के साथ मैं सुबह उठी। कोई किताब हाथ नहीं लगाना, रात को लेट नाइट मैं कभी नहीं पढ़ती एग्जाम में। आराम से कंफर्टेबल डिनर टाइम तक जितना पढ़ा, डिनर के बाद कुछ नहीं, इधर उधर थोड़ा घूमे, रिलैक्स किया, सो गए, सुबह उठ के सीधा एग्जाम देने गए। आई नेवर कैरी माई बुक्स टू द एग्जामिनेशन हॉल और इन द गाड़ी, मैं कभी नहीं पढ़ती। मुझे लगता है कि अब आपको रिलैक्स रह के अपने सेंसेस को बढ़िया रखना है ताकि जो आपने पढ़ा है वो आपके काम आएगा। क्योंकि लास्ट में पढ़ने से ना वो चीज दिमाग में घूमती रहती है। अब पेपर में वो तो आना नहीं है, कोई क्लास 5 का एग्जाम नहीं है कि इसके पीछे के 5 क्वेश्चन में से ही आना है। तो देयर इज अ लॉट। तो अपने माइंड को थोड़ा फ्री छोड़ने से वो ज्यादा अच्छा एक्सरसाइज कर पाता है। और मुझे लगता है जो आपकी इंस्टिंक्ट काम करती है, उस इंस्टिंक्ट को काम करने का एक स्कोप मिलता है जब माइंड को थोड़ा फ्री कर देते हैं। क्योंकि प्लेन्स में भी मैंने फील करा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 100 क्वेश्चन आए हैं तो 100 के 100 आपने पढ़े हुए हैं।
उसमें से 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, या आपको हल्का फुल्का सा उनके आसपास का आइडिया होगा। जी। आपको ऊपर वो 15-20 क्वेश्चन भी परफॉर्म करने हैं, तो वो 15-20 परफॉर्म करने के लिए ना आपकी एक सिक्स सेंस होती है जो काम करती है, एक इंस्टिंक्ट बोलती है आपकी, तो आप उस इंस्टिंक्ट पे जाते हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उस इंस्टिंक्ट को काम करने देना चाहिए और रिलैक्स रहना चाहिए, आखिरी तक नहीं पढ़ना चाहिए। और इस विश्वास के साथ ही मैं जाती हूँ कि भाई मैंने अब पढ़ लिया, सब मुझे आता है, अब मैं सब कर दूंगी। अब तो करूंगी आपने कितना वो अलग बात है। you appeared for the prelims, you gave both the exams, and you started for the mains directly, or you were waiting for the result to come out? नो Because नो नो नो, yeah. आई नेवर, मैंने तो आज तक कभी प्रीलिम्स का पेपर देके आके मैंने क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं उठाया, मैंने जी। कभी आंसर चेक नहीं करा, मैंने कभी आंसर की से टैली नहीं करा। मुझसे लोग पूछते थे कितने नंबर बन रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं कितने बन रहे हैं, जितने बनेंगे अब वो रिजल्ट में बनेंगे, आई विल नॉट डू इट। जी। कभी नहीं किया मैंने, और मैं आज भी फेवर नहीं करती। मुझसे कोई पूछता है, मैं बोलती हूँ अपनी मेहनत पे विश्वास करो, उस पे विश्वास करो, करके भूल जाओ, अब जी। जो सामने आएगा आएगा। नंबर लगाने से मैं ना पास होने वाली हूँ ना मैं फेल होने वाली हूँ, तो अपने दिमाग में ताना बाना क्यों बुनना है, आप रिलैक्स रहो। आपने अपनी मेहनत ईमानदारी से कर दी है, आप पेपर भी ईमानदारी से बढ़िया करके आए हो, गिव दैट पॉजिटिव एनर्जी और आप नेक्स्ट काम में लग जाओ। क्योंकि यहाँ पर ये समझना हमें बहुत जरूरी है, जो आप ईमानदारी, जो कमिटमेंट, जो क्लैरिटी की जो बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी पूंजी है। इट इज अ वेरी वेरी ग्रेट वेल्थ विच we generally sometimes we tend to take it for granted, but I think it is the igniting power. It is the most important wealth. It is the greatest wealth on earth in that sense, which we get from our parents, which we get from our school teachers, or from the ecosystem that we had. In this regard, this reminds me that because I had good fortune, even to have interaction with your mother also. She had been a great role model. She had such a great clarity and vision from such a long time, and she had been a pillar, obviously, along with your father, who had also been a very very grounded role model. So this makes a lot of difference, because we, as I'm again saying, we take these things very normally, but then beyond normal things only abnormal thing happens, and we choose very very mundane things sometimes over things which are important, because important things are always very very hidden, they are not very shiny, they are not very spectacular, they will on the first appeal they may even look very bitter also. So in this light, the kind of work ethics which your parents have inculcated, and in fact you had seen them, both of them, for that's what. So can you please throw light on that also, because it helps us to correlate, because everyone's parents, somehow somewhere, they are very committed, but then probably we are taking them for granted, probably we are not able to appreciate them, probably society had become so much flashy, so much consumer oriented, so much personality cult, so much star oriented, that we do not want to talk to people who are very humble. We do not want to talk to people whom nobody is talking. We want to be part of the bandwagon. We want to be part of the walking exercise. I want to be part of the crowd. I want to go to a concert. I want to have iPhone, but I do not want to sit down and talk and to work and to own responsibility. So that work ethic, can you please, आप कोई ऐसे इंस्टेंस बताइए जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम उनको रिलेट कर पाए। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि आपके पेरेंट्स को देख के आप बहुत चीजें सीखते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बचपन में आपने सुनी होती हैं और वो आपके जहन में इस कदर घर कर जाती हैं कि वो लाइफ में आपके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाती हैं। तो पेरेंट्स आपके लिए बहुत बड़े रोल मॉडल होते हैं। एक दो इंस्टेंसेस जैसे मैं आपको बोलूं कि कभी मुझे स्कूल में से ना ऑफ लेने का मौका नहीं मिलता था, मेरी मदर बड़ी स्ट्रिक्ट थी। मैंने हमेशा 100% अटेंडेंस का अवार्ड लिया है हर साल, और वो सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, जब तक कि आई थिंक मैं 11th-12th में नहीं आ गई। जब आप थोड़ा सा एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो छुट्टी लेके घर पे पढ़ने का सिलसिला होता है, पर 10th तक तो मैंने हमेशा 100% अटेंडेंस का अवार्ड लिया है, एंड क्रेडिट गोज टू माय मदर। ऐसा नहीं है कि मैं कभी बीमार नहीं हुई। 104 फीवर है मुझे, सुबह 7 बजे मेरी मदर मुझे क्रोसिन खिलाएंगी, आधा घंटा घर में बिठाएंगी, पसीना आएगा, फीवर उतरेगा, 8 बजे असेंबली के बाद स्कूल छोड़ के आ जाएंगी कि असेंबली में नहीं जाना, असेंबली के बाद क्लास में छोड़ के आ जाऊंगी, मैं छुट्टी नहीं लेनी। तो दैट डिसिप्लिन कि आपका जो काम है वो आपको करना ही है, तो वो धीरे धीरे करते करते मेरे जहन में बैठ गया कि आप किसी चीज का लाइफ में एक्सक्यूज ले ही नहीं सकते। आपको क्या प्रॉब्लम है वो सेकेंडरी है, आपका मेन गोल आपको पता होना चाहिए। एक्सक्यूज देने लगोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। तो आज भी वही चीज है कि मेरे को कभी कोई एक्सक्यूज फील ही नहीं होता।
मेरी जॉब ऐसी है कि राउंड द क्लॉक यू आर वर्किंग, इवन एट इफ यू आर एट होम यू आर वर्किंग, रात में भी आप काम कर रहे हैं, आपके टाइमिंग्स का कुछ पता नहीं है। आई हैव अ स्मॉल चाइल्ड विद मी। जब मैं यहाँ अंडमान आई थी तो वो 6 महीने का था, उसको लेके आई थी। एंड आई हैव एन ओल्ड मदर हु इज 80 years old। पर वो मेरी जिम्मेदारी है, बट वो मेरी कभी कमजोरी नहीं बनने देती मैं उन्हें। आई ऑलवेज ट्राई कि अगर मेरे को बैलेंस करना है तो मुझे दोनों को बैलेंस करना है। आई जस्ट कैन नॉट टेक एन एक्सक्यूज कि मैं एक लेडी ऑफिसर हूँ, मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरी एक मदर है, और आई एम ए लेडी ऑफिसर, आई विल नॉट बी एबल टू गो टू दैट प्लेस और डू पर्टिकुलर ड्यूटी। तो ये जो चीजों से एक्सक्यूज लेने का फिनोमिना है, वो मेरी लाइफ में मेरी मदर ने डेवलप ही नहीं होने दिया। जो आपको करना है वो करना है। सेकेंडली, मुझे कभी बचपन में ऐसा बोला गया था कि कोई काम आपसे बड़ा नहीं होता। मेरी मदर ने कभी ऐसी छोटी सी उस पे बोल दिया, जैसे छोटे बच्चे को माँ कोई काम बोल देती है, आप बोलते हो मम्मा ये मेरे से कैसे होगा, मतलब ये तो बहुत बड़ा है, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी। तो शी टॉट मी वंस कि काम बड़ा नहीं होता इंसान से, इंसान ही बड़ा होता है, काम हमेशा छोटा ही रहता है। तो वो एक छोटी सी चीज मेरे दिल में ऐसे घर कर गई कि जहां मुझे लगे कि हो पाएगा कि नहीं, मुझे यही चीज मेरे माइंड में घूमती थी कि काम तो आपसे बड़ा होता ही नहीं है, आप ये बड़े हो काम से। अब आपके ऊपर है आप उसमें कितनी एनर्जी डाल रहे हो अपनी। आप अपनी एनर्जी बचा के रख रहे हो तो आप काम नहीं कर पाओगे, आप अपनी पूरी एनर्जी उसमें झोंक दो, आपसे हो जाएगा। तो इसलिए जी इन चीजों को, इन वैल्यूज का रिफ्लेक्शन आई थिंक मेंस में आया, मेंस राइटिंग में आया, और आप इंटरव्यू तक भी पहुंच गए। सो व्हेन यू अपीयर्ड फॉर यूपीएससी इंटरव्यू, और वो सभी बोलते हैं मैं नर्वस हो था, 5 member बोर्ड होता है, दे इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग, पर फिर भी यदि आप शेयर करना चाहें, कैन यू शेयर 1 or 2 योर ऑब्जर्वेशंस नाउ टुडे, जो कि इंटरव्यू बोर्ड में आपको लगी कि दिस वाज आस्क्ड एंड दिस वाज द द सिनेरियो, और ये मैंने आंसर दिया, ऐसा कुछ अगर आप बोल सके, क्योंकि उसके बाद तो एकदम सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। यू गो टू एकेडमी एंड देन सडनली a different life starts, a completely different starts. So when you appeared for the UPSC, because आर्मी का तो आपने बताया ही, it is very disciplined and all that. So even यूपीएससी का जो इंटरव्यू था, क्या वो आपको कैसा लगा, मतलब कि उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा? यूपीएससी का जो इंटरव्यू था वो मेरे लिए कोई बहुत नया सिनेरियो नहीं था, नहीं था, बिकॉज मैंने जो एसएसबी फेस किया था वो भी सिमिलर पैटर्न पे ही होता है कि इट्स अ बिग बोर्ड ऑफ पीपल एंड एवरीबडी क्वेश्चंस यू ऑन एन नंबर ऑफ थिंग्स, यू आर सिटिंग इन दैट सीरियस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। और तो मुझे ऐसी कोई घबराहट नहीं थी, और क्योंकि शायद मैं 5 साल इंडियन आर्मी में एज ए गजेट ऑफिसर काम भी कर आ रही थी, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरे अंदर उस टाइम था। पर बात सिर्फ ये होती है कि आपने ये सोचा है कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो जो एक आपके अंदर आता है ना कि दिस इज लाइक लास्ट ट्राई यू आर गिविंग, यू हैव टू क्रैक इट, नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ वो एक डर आपको डराता है। तो अगर आप उस डर को निकाल दो कि ये हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो देख लेंगे जो होगा, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही वो ट्रेन करना होता है। अगर आप उस चीज से ओवर पावर कर लेते हो ना कि दिस इज नॉट द लास्ट थिंग ऑन द अर्थ, आई कैन डू एनीथिंग व्हाट आई वांट, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल। और मैं वही बोलूंगी जो मैं हूँ। अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ कदम रखते हो ना इंटरव्यू बोर्ड के अंदर कि आप जो हो बस आपको वही प्रेजेंट करना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरव्यू बोर्ड आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। प्रॉब्लम वही आती है जहां पर हम थोड़ा ब्लफ करना शुरू करते हैं, चीजों को पॉलिश करके प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाले को हम पसंद आए, जबकि जो सामने बैठे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उन्होंने हमारे जैसे बहुत देखे हैं सर्विस में। तो आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो पसंद करेंगे। तो वो अगर आप सिंपल, क्लियर और ओरिजिनल रहेंगे तो यू विल डेफिनेटली बी लाइक्ड। Agreed. And then when that's how you were allocated service, you came into service, you started contributing, you started learning. हमने जब अभी बात करनी शुरू की थी तो आपने कंसाइंस की बात की थी कि कैसे नैतिक निर्णय लेने में जो अंतरात्मा की आवाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैन यू प्लीज गिव योर व्यू इफ आई से दैट इज conscience a more reliable guide when compared to laws, rules and regulations, in context of ethical decision making? आप क्या कहेंगे? That is conscience more reliable guide when compared to laws, rules and regulations in context of ethical decision making? मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली हम डिसीजन जो हैं वो रूल्स, प्रिंसिपल्स, लॉज, प्रोसीजर्स के हिसाब से नॉर्मली ले पाते हैं। अगर आपको अपना पता है लॉ पोजीशन क्या है, रूल क्या है, प्रोसीजर क्या है, जनरली यू डोंट टेंड टू गो रॉन्ग। पर ऐसी कभी कभी ही सिचुएशन आती है जब लॉ वर्सेस कंसाइंस आ जाता है, जहां पर आपको लगता है कि दोनों ऑप्शन है, लॉ ये कहता है बट आपको लग रहा है कि लॉजिकली ये भी ठीक है
सो व्हाट टू डू? तो उस केस में मुझे हमेशा लगता है कि आपका कंसाइंस भी आपको अगेंस्ट द लॉ नहीं गाइड करेगा, बट वो जो एक वंडरफुल। हेयर लाइन डिफरेंस है ना, वो आपको कंसाइंस की आवाज से सही डिसीजन पे पहुंचाएगा। जी। मतलब छोटा सा एग्जांपल कि अगर मेरे पास कोई ऐसा केस है कि मुझे पता है इस बंदे को अरेस्ट करना है या नहीं करना है, हम्म। इसका बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ है, बट आपने सारा वो 1 2 3 की चेकलिस्ट है, आपने वो चेकलिस्ट पूरी चेक कर ली, फिर भी आपको कहीं ना कहीं वो चीज ठनक रही है माइंड में कि सब कुछ तो ठीक है, पर फिर भी क्या होना चाहिए? तो दैट क्या होना चाहिए ना, आप अपने कॉन्शियस से पूछोगे ना, आपकी कंसाइंस से आपको आवाज आ जाएगी आपको क्या करना चाहिए। जी। एंड मेरा तो अभी तक एक्सपीरियंस है, वो डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं होता, जी। क्योंकि आपका कंसाइंस भी कभी आपको अगेंस्ट द रूल नहीं बोलेगा, नागेंद्र। आपको नहीं बोलेगा, बस आपके पास वो मेंटल डायलेमा आ रहा है, इसको ऐसे किया जाए या वैसे किया जाए, एंड दैट योर कंसाइंस विल गाइड यू। Agreed, agreed. So when you when you joined and when you went to the police academy, you had a wonderful uh, training horizon, and then coming back and getting first experience. If I'm not wrong, the first work station, or I should say the posting place, was Delhi only. The Delhi is one of the most complex, one of the most demanding, not only just in India but across the world. If we see it honestly, it is one of the most demanding, and law and order definitely plays very important role in context of development, which we tend to neglect. We tend to put it mechanically, but without law and order, no foreign direct investment can be there, no political stability can be there, no human development, or one can say human capital formation even, in fact, is linked with law and order, of which you are a great custodian. So when you came to Delhi and you had a work experience over here, what exactly would you like to share with us, so that one can understand that this is the ground situation and that's how the things happen? जब हम ट्रेनिंग में होते हैं या जो अब हम प्रिपरेशन फेज में होते हैं उसमें, और जब आप चेयर पे बैठते हैं उसमें, दोनों में बहुत फर्क होता है। आप ट्रेनिंग फेज में एक अलग इंडिविजुअल होते हैं, ट्रेनिंग में आपको जो सिखाया जाता है आपको लगता है आपको सब समझ में आ गया है, आप काम भी सीख गए हो, पर जब आप कुर्सी पे जाके बैठते हो ना, तो जो उस कुर्सी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम तो आपको वो सिखाती है, ट्रेनिंग तो आपको सिर्फ थोड़ा ग्रूम करती है, पर कैसे काम करना है, कैसे डिसीजन लेना है, किस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा, वो कुर्सी ही बताती है। तो जो आपकी ऑन ग्राउंड, मेरा मानना है कि जो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है वो आपके लिए लाइफ में सबसे बड़े लेसन होते हैं। तो जो अपना दिलो जान से मेहनत कर लेता है उस फर्स्ट पोस्टिंग में, वो इन एंड आउट काम सीख जाता है। एंड आई थिंक दोज ऑफिसर्स टेंड टू ग्रो एज अ गुड प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स। और जो शुरू में सोच के कि हम जूनियर हैं, अभी तो सर्विस में आए हैं, कर लेंगे, और इधर उधर की चीजों में पड़ जाते हैं, तो वो काम नहीं सीख पाते, एंड दे नेवर ग्रो एज प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, और इनफैक्ट वो करियर ही खराब हो जाता है आपका। और इनिशियल पोस्टिंग जो आपकी होती है उसमें सब लोग की नजर होती है आप पे कि नया बच्चा आया है सर्विस में, कैडर में नया ऑफिसर आया है, तो कैसा है, वो मेहनती है, उसका कंडक्ट कैसा है, इंटीग्रिटी कैसी है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, वो चीजों को कैसे डील करता है। तो आपकी जो इमेज बिल्डिंग होती है अपने अपने कैडर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी फर्स्ट पोस्टिंग से। तो और उसमें आपके लिए एनवायरनमेंट भी बड़ा अलग होता है, आपने इस तरह का काम कभी नहीं किया होता, चाहे आप किसी भी सर्विस में हो, आपने वो काम पहले कभी किया नहीं है, आपके लिए वो नया है, तो आप उसमें अपने नीचे वालों से बहुत सीखते हैं। और मेरा मानना है कि ओपन रहना भी चाहिए, आपके नीचे वाले बड़े तजुर्बेकार हैं तो उनसे सीखने के लिए ओपन भी रहना चाहिए, बट साथ ही साथ अपना आईक्यू लेवल आपका उनसे ज्यादा है, तो उनके बोली हुई चीजों को जज भी करना चाहिए कि कितना करना है और कितना नहीं करना, बट यस गाइडेंस उनसे जरूर लेनी चाहिए। जी, so that how a person moves on. And then if I bring the point to that, serving even in Andaman and Nicobar Islands, जहां पर 99% भारतीय है, सिर्फ नाम सुना है 99% भारतीयों ने, जाने की बात भी मालदीव चले जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंडमान निकोबार के लिए फर्स्ट गो में ही कूद के तैयार हो जाएंगे, और वो जबकि भारत का बहुत ही स्ट्रैटेजिक और बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। एंड जहां पर आप खुद ही अपने लिए अकाउंटेबल हैं, खुद ही आप किंग हैं, खुद ही आप सर्वेंट हैं, खुद ही आप हैं, बिकॉज सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस आर एडवर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। सो कीपिंग दोज आइडियाज इन माइंड, serving in such a inhospitable and also
tough terrain, one would say. आपने Mansi, the question that you had, you were asking me yesterday. Can you please come with that point? She had a question, and please carry on. Ma'am, I saw one of the social media posting which stated that you were going to a village via walking, and it was a 2 hours long of walk. So how difficult is the situation when it comes to accessibility of the remote areas? Yes. यहाँ पे करीबन अंडमान निकोबार में 800 ऑड आइलैंड्स हैं और उसमें से इनहैबिटेड आइलैंड्स बहुत कम हैं एंड दे आर वेरी वेरी फार ऑफ. तो अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यहाँ पर एरिया जो है किलोमीटर वाइज माय नॉर्थ एंड साउथ ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज लाइक 270 किलोmeters, which is a huge area. Yes, I mean, you maybe from Delhi you reach Jaipur before that, or you reach Agra. Bareilly before that, or Agra. Yes. So it's a vast area, but thickly populated नहीं है, thinly populated है. Population is very sparse here. और कोस्टल बेल्ट में ज्यादातर लोग रहते हैं. तो जो हम बात करते हैं कोस्टल बेल्ट हमसे बहुत दूर हो जाती है. अगर हम देखें कि माउंटेन्स को काट के रोड बनाई गई है, देन देयर आर डेंस जंगल्स, एंड जंगल के बाद आपका सी आता है और सी का जो कोस्टल एरिया वहां पर ज्यादातर लोगों ने अपने गांव बसा रखे हैं. उसका रीजन है कि इनका जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है वो फिशिंग है. तो इतने रिमोट गांव हैं जहां पर आपको 2 से 3 घंटा चल के पैदल जाना पड़ता है. अगर कोई एक इमरजेंसी फोन आ जाए, पहली बात तो उनके पास नेटवर्क ही नहीं है. अगर उनके साथ कुछ हो जाता है, दे कांट इवन कम्युनिकेट. तो वो लोग कहीं चलकर जाते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, जहां उनको मालूम है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेटवर्क कैच करेगा. वहां से वो कम्युनिकेट करते हैं पुलिस से कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है. और कई बार वो रात का समय भी होता है और धुआंधार बारिश होती है बिकॉज इट्स अ आइलैंड. तो रात में 3 घंटा उस जंगल में जहां पूरा कीचड़ और पानी है, पुलिस को चल के जाना है, उस गांव तक पहुंचना है और फिर देखनी है क्या सिचुएशन डिमांड करती है और उसके हिसाब से काम करना है. तो बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियोज हैं यहाँ पर. और जब मैं उस गांव में गई तो मैंने देखा कि बच्चे जो हैं सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं तैयार होके, जंगल में चलकर आते हैं 2 घंटा, फिर उनको मेन रोड से बस मिलती है, बस लेके वो एक पर्टिकुलर स्कूल में जाते हैं और वापसी में वही रूट लेके शाम को 5:30 बजे, जब यहाँ आइलैंड में अंधेरा हो जाता है, सनसेट हो जाता है, अपने घर पहुंचते हैं. उसमें गर्ल चाइल्ड भी हैं जो 10th और 12th में पढ़ रही हैं. और वही समय बारिशों में रहता है जब लीचीज हो जाती हैं और दुनिया भर के कीड़े रहते हैं. तो बच्चे बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में पढ़ाई कर रहे हैं. तो इस तरह का यहाँ सिनेरियो है. Even in this context, if we say that the universal values जो आपने अभी पोर्ट्रे की, ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की, फेयरनेस एंड जस्टिस की, इवन करेज और कन्विक्शन की अगर हम बात करें, या फिर स्पिरिट ऑफ सर्विस की भी अगर हमने बात की, सो डू यू एग्री विद द फैक्ट दैट वी वांट both male and females to contribute towards nation building? And in this context, again, I'm bringing the fact that more opportunities in general are available to males and not females. So आपने अपने इस पूरे लॉन्ग डिस्टिंग्विश्ड पूरे अपनी जर्नी में आपको जब जब ऐसा महसूस हुआ है, जब जब आपने देखा होगा, आई एम वेरी श्योर कि जो सतह है, यानी जो ग्राउंड लेवल है, दैट इज नॉट इक्वल फॉर मेल्स एंड फीमेल्स. So how you had, because there are very few female officers, those who had really gone ahead and they are making difference. Everybody is doing in their own way, but then to become a role model, जैसे हमारे फर्स्ट जो हम जैसे वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड एंड फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर्स जितना किरण बेदी मैम की जब हम बात करते हैं, या फिर दिल्ली, जब हम दिल्ली कार्डर की जैसे हम बात करते हैं, वेरी डिमांडिंग एंड वेरी वेरी immense amount of work pressure is there. So इस कॉन्टेक्स्ट में आपने कुछ चीजें जो आपने बार बार फेस की या देखी, और फिर आपने उनका कैसे आपने उनका सॉल्यूशन सोचा? क्या आपने उनको बाईपास कर दिया या आपने उसकी तरफ आगे बढ़ के आपने कदम उठाया? जैसा बात कर रहे हैं कि वो मेल और फीमेल के लिए थोड़ा सा एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म हमेशा रहता है. तो मैं पहले ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में रही हूँ जो टोटली मेल ओरिएंटेड थी, इंडियन आर्मी, and women were there as a special entry, though now they are giving permanent commission also. Then I came to police service, which is again said to be like a masculine service, male dominated service. So
अपनी एक पहचान बनाना वहां पे मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लोग परसीव करते हैं कि ये फीमेल है, सॉफ्ट है, और यहाँ पर चाहिए कोई रोबस्ट बॉडी वाला धाकड़ Correct. आदमी जो गाली गलौज के साथ बात करे, चिल्ला चिल्ली करे, तो जी। वो बढ़िया स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। एक ये जनरल इमेज कैरी होती है। पर मुझे लगता है मैंने उस इमेज को ब्रेक करने की कोशिश करी है, 2-3 तरीके से कोशिश करी है। जहां तक बात आती है कि आप कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो मैंने ऐसा कोशिश करा है कि आपको ये दिखाना जरूरी नहीं कि आप कितना गाली दे के बात करते हो, आप कितना सामने वाले पे ऊंची आवाज में चिल्ला के काम कराते हो। काम कराने के बहुत तरीके होते हैं। कई बार आप आपकी इज्जत इतनी बना लेते हो कि सामने वाला उस इज्जत में आपका काम करता है। मतलब यू कमांड रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क एंड योर बिहेवियर एंड योर पर्सनालिटी। एक होता है आप डरा के काम करा रहे हैं कि उसको डर है कि एसपी साहब आ रहे हैं और 4 गाली मिलेंगी, काम कर दो। एक तरीका है कि आपको पता है कि साहब ने बता रखा ये काम ऐसे होना है, तो साहब को बुरा ना लग जाए, काम ऐसे ही करके देंगे। सो देयर आर 2 ways टू गेट द वर्क डन। सेकेंडली, मुझे लगता है कि फीमेल का एक कंपैशनेट वाला एंगल होता है जिससे आप लोगों के दिलों को छू भी सकते हैं। आपकी जो वर्कफोर्स है आपके लिए काम करती है। आप तभी तक अच्छे ऑफिसर है ना जब तक आपके नीचे वाले आपका दिया हुआ काम परफॉर्म कर रहे हैं, यू आर अचीविंग द टारगेट्स। अगर आपका नीचे वाला स्टाफ आपसे नाखुश है और वो आपके लिए एफिशिएंटली काम नहीं करके दे रहा, तो यू विल आल्सो नॉट बी प्रूवन एज अ गुड ऑफिसर, देन यू आर नॉट अ गुड लीडर। आपको अपनी टीम से काम कराना है, दैट इज योर एबिलिटी। तो उसके लिए अगर आप, मैंने ऐसा माना है, इफ यू टेक केयर ऑफ योर पीपल वेल, if you understand them well, if you know them well, they will happily work for you. आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा, they will work for you out of respect. This reminds me that you even I'm not aware of the total number, but then Saddle Peak Yes. का भी आपने एक कैंपेन किया Expedition था, किया एक्सपीडिशन किया था। प्लीज कैन जी। यू शेयर विद अस how that idea came to your mind, you know? Yes. जब मैं यहाँ आई थी तो ये तो हमने यूपीएससी में सबने पढ़ा था, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड कोइंसिडेंटली इट इज इन माय डिस्ट्रिक्ट। तो मुझे लगा कि इसकी एक बार तो इसको जाके ऊपर देखना ही चाहिए। तो पीपल टोल्ड मी कि अभी तक तो कोई ऑफिसर तो गए नहीं है, जो फॉरेस्ट का स्टाफ है वही जाते हैं या कभी आर्मी वाले आके चढ़ जाते हैं। तो सिविल सर्वेंट्स तो कभी नहीं गए हैं, ऐसा कोई डीसी और एसपी तो नहीं हुआ है। तो पीपल वर एप्रीहेंसिव अबाउट इट कि पता नहीं मैडम चढ़ पाएंगे कि नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है बट इट इज स्टीप, और यहाँ का वेदर ऐसा है कि स्लिपरी हो जाता है सब कुछ, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दे वर एप्रीहेंसिव। आई सेड डोंट वरी, विल डू इट टुगेदर। तो हमने एक टीम बनाई, हमने उसको विमेन एक्सपीडिशन रखा और हमने सारे डिपार्टमेंट से विमेन उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोला, और लोकल पीआरआईज में जो लेडीज थी वो भी आई, हाउसवाइफ्स भी आई, टीचर भी थी और कॉलेज की लड़कियां भी थी। तो जो विलिंग थे उन सबको लेके हमने वो एक्सपीडिशन करा और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसको हमने एक अच्छा सा नाम दिया, स्वावलंबन, दैट इज सेल्फ रिलायंस। वी आर क्लाइंबिंग दैट पीक नॉट टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी, टू शो अस दैट वी हैव पावर एंड इफ वी थिंक वी कंकर थिंग्स। So it was the motive behind that. और एज अ टीम हम ऊपर गए और एज अ टीम हम वापस आए। तो सबसे बड़ी बात थी कि उस टीम में से कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए, तो उस टीम को साथ लेके आना। और सब जब लौट के वहां से आए तो सबके अंदर जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था, दैट वाज ग्रेट। सो दैट इज वन ऑफ द एक्टिविटीज व्हिच वी हैव डन। कि मेरा हमेशा ये रहता है कि लेडीज में मेरे मन में हमेशा लेडीज और यूथ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। So if you see what all activities I have been doing in the district, they are very roaming near about around youth and ladies. तो लेडीज के लिए एक एक्टिविटी थी और ऐसे मैंने कोशिश करी है यूथ के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज करने की, क्योंकि जैसा आप अभी बोल रहे थे सोसाइटी के लिए काम करना, नेशन बिल्डिंग करना, तो ये चीज मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं मानती हूँ कि समाज ने मुझे बहुत दिया है, इस लाइफ ने मुझे बहुत दिया है, और मैं जो आज हूँ वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं हूँ, मेरे पूरे देश ने और समाज ने कंट्रीब्यूट करा है, तो मैं आज यहाँ हूँ। और मेरी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अब सोसाइटी को लौटाऊं। तो सोसाइटी को लौटाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मैं जिस कुर्सी पे बैठी हूँ वो करूं, वो तो मैं ईमानदारी से करूं ही, पर उसके अलावा जो मैं पर्सनल कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ वो मैं जरूर करूं।
तो जी। इसीलिए मैंने कुछ ऐसे 3-4 प्रोग्राम चलाए हैं जिसमें बच्चों को हम लोग करियर गाइडेंस देते हैं। बच्चे मेरे ऑफिस में आते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं उनका सेशन लेती हूँ, फिर 1-to-1 सेशन होता है, बच्चे अपने डाउट्स पूछते हैं करियर के बारे में। बाकी रिसोर्स पर्संस को भी हम इनवाइट कर लेते हैं, जैसे कोस्ट गार्ड में किसी को जाना है, आर्मी में जाना है, अग्निवीर स्कीम में जाना है, सिविल सर्विसेज जाना है, तो इस टाइप के इवेंट्स हम लोग बच्चों के साथ करते रहते हैं। And in this context, this reminds me of a very unique and very unique and a forward-looking project that you had just concluded about the children traffic park. हम तो जनरली ट्रैफिक पार्क अपने सिटीज में अगर हम ढूंढने चलेंगे तो आई डाउट कि एवरी सिटी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 वुड बी हैविंग ट्रैफिक पार्क्स, क्योंकि वैसी परंपरा, वो सोशल बिहेवियर, वो माइंडसेट नहीं रहा है। तो इसके पीछे, क्योंकि आपने एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी क्रिएट की, वो हमेशा रहेगी, और आपने उसको सस्टेनेबल भी बनाया। सो कैन यू प्लीज, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल विच वन कैन कोट इवन इन एथिक्स, which even future aspirants can even speak about in their interview, which even one wants to learn and to follow it, they can do it. It's a kind of a creation of a it's a kind of a seed bank exercise. तो प्लीज क्या आप बताएंगे कि वो आइडिया कैसे आया, बिकॉज you had done it in very minimum resources, and that too also bringing the best of everything on one platform. बिल्कुल। आइडिया तो इस तरह से आया कि यहाँ चिल्ड्रन बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है। मेरा खुद का अपना एक छोटा बच्चा है, तो अगर मैं सोचूं कि मुझे शाम को उसको लेके जाना है कहीं टाइम स्पेंड करने के लिए, तो यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है। होने को ये जगह पूरी हरी भरी है, हरियाली की कोई कमी नहीं है, बट इट्स ऑल जंगल एरिया। देयर इज नो पार्क, अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन कैन गो एंड एंजॉय विद देयर फैमिलीज इन द इवनिंग। तो ऐसे ही मुझे आइडिया आया कि हालांकि मैंने अपने घर में एक छोटा सा बच्चे के लिए डेवलप करा प्लेग्राउंड, बट मुझे लगा कि मैं बच्चे के लिए कर पा रही हूँ, बट बाकी बच्चे शायद उससे महरूम है। Yeah. तो हमने सोचा कि क्यों ना, जो एक पर्टिकुलर जगह है हमारे यहाँ डिगलीपुर, वो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है और वहां पर मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, तो एक पार्क क्रिएट किया जाए। अब क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं रहते, पार्क क्रिएट करना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। आप पहले लैंड सैंक्शन कराएंगे, फिर उसका एक प्रोजेक्ट बनेगा कि उसमें क्या क्या बनेगा, कितना खर्चा होगा, कौन बनाएगा, कितना टाइम लगेगा, फिर उसका अप्रूवल आएगा, फिर उसका मनी सैंक्शन होगा, फिर उसका टेंडर होगा, फिर वो काम शुरू होगा, होते होते उसको 1-2-3 साल लग जाएंगे। तो मेरे मन में था कि मेरा जितना टेन्योर है, मतलब 1 साल में मैं उस पार्क को खड़ा कर पाऊं। It was a very big challenge for me with limited resources, because it is like a 4-5 years of a project which I was planning. But मैंने अपनी टीम से बात करी and we decided कि नहीं, शायद ये doable है, but हमें उसके लिए बहुत extra effort करना पड़ेगा। So everybody in the team agreed to it कि it's a very good initiative और हम सोसाइटी को कुछ contribute कर रहे हैं और इसके लिए हम extra way भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। So then we tried to get a land, फिर हमने काफी उसको क्लोजली मॉनिटर करके लैंड एक्वायर करी। हमने CSR इनिशिएटिव्स को फॉलो करा। हमने कुछ बड़े फर्म्स जो यहाँ काम कर रही हैं NH मेकिंग में या बाकी चीजों में, उनको हमने रोप इन किया दैट इट्स अ सोसाइटल कॉज, तो यू कंट्रीब्यूट, यू विल आल्सो गेट योर CSR फंडिंग फॉर दैट। और फिर हमने, हमारे पास ना यहाँ पर आर्किटेक्ट है, ना हमारे पास यहाँ कोई प्लानर है, तो हम खुद ही आर्किटेक्ट बने, खुद ही प्लानर बने और खुद ही हम मिस्त्री बने। खुद ही हमने कोलतार की रोड बनाई और खुद ही हमने वो सारे झूले प्लान किए बच्चों के लिए, ट्रैफिक के वीडियोस बनाए और एक ई-लर्निंग कियोस्क बनाया कि यहाँ के बच्चों को थोड़ा टेक्नोलॉजी से भी हम रूबरू कराए। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे एक हर कॉर्नर को कैसे हम डेवलप करें वो हमने थॉट देते गए और हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके काम करके उसको 4 से 5 महीने में उस पार्क को खड़ा कर दिया। तो वो दिन रात की मेहनत, मैं भी मानती हूँ कि वो मेरी टीम की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 4-5 महीने में एक बंजर जमीन जो कि धसी पड़ी है कीचड़ में, आप उसको ऐसा सुंदर एक पार्क खड़ा कर दें। तो इट्स अ डेडिकेशन। इससे मुझे I can relate that in our modern democratic polity, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जो रोल है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कई बार प्ले करते हैं। This is the role actually of political executive, because permanent executive is not reflecting people's real aspirations. It should be through political executive. लेकिन अगर हम देखते हैं तो permanent executives are the very much integral part. Without them nothing will move forward. They're the most important agency in one way, क्योंकि ministers या public representatives are forming policy decisions,
and bureaucrats are executing these. इसमें मुझे दो बातें याद आती हैं. One, that you got even awarded, you had been commendation was given by the honorable lieutenant governor of Andaman and Nicobar. This happened. So आप प्लीज एक तो उसके बारे में बताइए. और दूसरा, हम जब देखते हैं कि इन द इनिशियल डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस जो रिलेशनशिप थी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की थी बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन था. जिस रिस्पेक्ट की आपने बात की, जिस आइडियलिज्म की आपने बात की, जिस प्रेम और श्रद्धा की आपने बात की, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में हमने देखा दैट सिचुएशन इज चेंजिंग. लाइक वी सी एवरी डे नाउ, सोशल मीडिया इज अ आई ओपनर इन वन वे एंड थिंग्स आर बीन मूविंग फॉरवर्ड आल्सो इन सो मेनी वेज. देयर आर इंस्टेंसेस जहां पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंसिस्ट करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव को कि आप एक इस तरह का एजेंडा फॉलो कीजिए. तो क्या आपके सामने जब कभी ऐसा कुछ प्रेशर आया या कभी ऐसा कुछ हुआ तो आपने उसको कैसे टैकल किया? एक पॉइंट ये है. दूसरा, जो रिस्पेक्ट है, एप्रिसिएशन जो होनी चाहिए अपराइट ब्यूरोक्रेट्स, अपराइट सिविल सर्वेंट्स के लिए, वो धीरे धीरे हमने देखा डिक्लाइन हुई है. हमने देखा है कि एक तरीके से पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है. तो ये दो बातों पर यदि आप कहें, और सबसे पहले कि जब आप व्हेन यू वर गिवन द कम्पिटिशन बाय द एलजी सर, सो हाउ वाज ऑल दैट? और ये दो पॉइंट्स आप प्लीज हमें प्लीज बताइए. जी, मैंने जितनी भी एक्टिविटीज यहाँ पर आने के बाद करी हैं उसमें से एक का जिक्र हमने अभी तक नहीं किया है. जैसे आपने बोला कि मेल और फीमेल वाला डिफरेंस रहता है, तो जब आती है ऑपरेशंस की बात, जी ग्राउंड ऑपरेशंस की, तो शायद मेल्स का फोटे माने जाता है वो, और फीमेल को उस पार्ट पे शायद थोड़ा सा वीक मानते हैं. तो मेरे लिए बड़ा ऐसा था जब मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में इसी चेयर पे मैं आके बैठी, मेरा सेकंड डे था, और सेकंड डे मुझे पता चलता है कि मेरे एक पर्टिकुलर एरिया में म्यांमारी पोचर्स आ गए हैं. और मुझे नहीं पता ये म्यांमारी पोचर्स क्या बला होती है, ये कौन सी प्रॉब्लम है. अभी तक की सर्विस में मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं था, बिकॉज आई हैव नॉट सर्व्ड इन सच अ टेरेन. मैंने लोगों को बुलाना, पूछना शुरू करा ये क्या है, कैसे करते हैं. सबने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम तो इनको पकड़ नहीं सकते, ये बड़े ऐसे लोग होते हैं, मार काट मचा देते हैं एंड वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, बड़े निर्दयी टाइप के लोग होते हैं और ये पकड़ में नहीं आते. ये अपना आते हैं, और सी कुकुम्बर एक मरीन एनिमल है जिसको ये एक्सट्रैक्ट करने आते हैं, और उसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट है. चाइना, जापान वगैरह दे पे हाई फॉर इट. और हमारा इंडियन ओशन रीजन जो है अंडमान वाला, दैट इज वेरी रिच इन इट. तो वो उसके लिए आते हैं, और ये रूटीन है, आते हैं जाते हैं, और ये बड़ा बिजनेस की तरह चल रहा है. म्यांमार से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो बड़ी बड़ी बोट्स को बनाते हैं, और जो वहां का थोड़ा पुअर यूथ है उसको इस पे लेकर आते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली का टेक केयर करेंगे, इतने दिन इतना पैसा तुम्हें देंगे, अब तुम जाओ और इतना केजी सी कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट करके तुम ये टीम लेकर आओ. तो वो 10 से 12 लोगों की एक टीम बड़ी सी बोट में आती है. इट्स ऑर्गेनाइज थिंग. उनका एक कैप्टन होता है, उसमें डाइवर होता है, फलाना ढिमकाना, ये सब करके, कंपास लेके, सब लेके वो आते हैं. तो लोगों ने बोला ये बहुत ऑर्गेनाइज चीज है और हम नहीं कर सकते. बट वही बात है ना कि काम कैसे बड़ा हो सकता है आपसे? काम तो बड़ा नहीं हो सकता, अब आपको उसमें घुसना पड़ेगा थोड़ा. तो हमने उस पर रिसर्च करना शुरू करा, पता चला ये चीजें ऐसे ऑपरेट होता है. फिर हमने एक अपनी एंटी पोचिंग टास्क फोर्स बनाई, ऐसे लड़के आइडेंटिफाई करे जिनमें वो स्किल था. पहले तो ये जाना कि चाहिए क्या इसके लिए, फिर उसके बाद वो लड़के ढूंढे, ऐसे ढूंढे जो विलिंग हो, बिकॉज ये काम आप जबरदस्ती नहीं करा सकते, वो जंगल में जाके घूम के आ जाएगा, तो अंदर से उसमें जज्बा होना चाहिए. ऐसे लड़के ढूंढे, और फिर उनकी ट्रेनिंग करवाई गई, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग हुई, मैप रीडिंग ट्रेनिंग, ग्राउंड रियलिटीज, डेमोग्राफी देखना, सब कुछ उनको कराया गया. अब वो टीम तैयार हो गई. फिर उनके लिए हमने इक्विपमेंट्स खरीदे कि अब उनको एंटी पोचिंग में जाना है, जंगलों में रहना है, पोचर्स पकड़ने हैं, तो दे शैल हैव इक्विपमेंट आल्सो. वो खरीदा गया. अब हमारी टीम पूरी तरह तैयार हो गई. उसके बाद हमने एंटी पोचिंग ऑपरेशंस करना शुरू करा. अब वो शुरू करा तो ऐसा शुरू हुआ कि वो ईश्वर की कृपा से आज रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स है. अभी फिक्की जो है उसने मुझे फॉर्चुनेटली बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफिसर इन एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस का अवार्ड दिया है लास्ट मंथ. अमेजिंग, दैट्स कमेंडेबल फॉर ऑल ऑफ अस. यस. और कोस्ट गार्ड जो है वो हैरान रहता है, नेवी आर्मी हैरान रहते हैं कि ये नॉर्थन मिडिल डिस्ट्रिक्ट में होता क्या है कि सारे पोचर ये लोग पकड़ लेते हैं. कोस्ट गार्ड की बाउंड्री क्रॉस करके तो वो आ रहे हैं कोस्टल एरिया में. तो जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड, उनसे हम लोग डायरेक्ट टच में रहते हैं जब भी ऐसा ऑपरेशन होता है. बट इट्स गॉड्स ग्रेस कि हर बार हमारी टीम ही बाजी मार लेती है,
और पोचर्स पकड़ लेती है। तो वी हैव अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स कि हमने कितना सी कुकुम्बर पकड़ा, कितने पोचर्स पकड़े, फॉरेनर्स एक्ट में केसेस रजिस्टर किए। तो मैं 15 साल का अगर डेटा बोलूं तो जितने 15 साल में नहीं पकड़े गए उसके डबल हमने 1 साल में पकड़े हैं। तो टीम जो मेरी है आज बोलती है कि हम तो सेम ही है, हम तो पहले भी यही थे, हम आज भी यही हैं। तो उनका कहना है कि आपने वो सोच रखी कि जी इस तरह का कुछ बनाया जाए और आपने हमारी काबिलियत को पहचाना। काम उन्होंने ही करा है ग्राउंड पे, मैंने जाकर एक पोचर नहीं पकड़ा है अभी तक, पर प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक जो रहता है वो हम एज अ टीम काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर एक ये बात रहती है कि मैडम का तो फोटे है, मतलब कोचिंग ऑपरेशंस इज लाइक एसपी नॉर्थन मिडिल। तो मैं उस बात पे बताना चाह रही हूँ कि वो मेल फीमेल वाली जो चीज है आप उसको काउंटर कर लेते हैं। जी इट इज ऑल अबाउट आप चाहते हैं तो कर पाते हैं। चाहते हैं तो करते हैं, करेक्ट। और जैसा आपने बोला वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वाला जो तालमेल है, उसमें भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये चीज बोलूंगी कि वो एक कहावत है ना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर खुदा उससे पहले बंदे से खुदा खुद तुझसे पूछे। पूछे कि तेरी रजा क्या है। बिल्कुल। तो आपको अपना वो एक स्टेचर क्रिएट करना है कि सामने वाला आपके आगे बोल ही ना पाए। तो टचवुड आई हैव दैट रेपो हियर इन द डिस्ट्रिक्ट कि अगर मैंने बोल दिया है पॉलिटिकल लोगों को भी कि चीजें इस तरह से करो और इस तरह से नहीं करो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज अगेंस्ट लॉ, तो दे लिसन टू मी। सो दिस इज अ रेपो विच आई शेयर विद देम एंड दे ऐसा लोग मुझे बताते हैं, मुंह पे तो कोई क्या ही बोलेगा, पर होता है ना आपका स्टाफ है, जाता है चाय दुकान पे बैठा है, कहीं बैठा है, तो कुछ फिलर्स आते हैं, तो पीपल से कि जब मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आए तो सबने बोला कि शायद ऐसा एसपी पता नहीं दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। और कोई बोलता है कि मैडम तो सारे ही काम करती रहती है, मतलब डीसी साहब के काम भी कर देती हैं, तो Correct. पीपल टॉक लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं इसका और कोई पर्पस नहीं है, इसका सिर्फ ये पर्पस है कि जो आपकी इमेज है लोगों की आंखों में वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला आपसे बोलने से पहले 4 बार सोचे कि मैं किससे बोल रहा हूँ। इसका तो जो ईमान है और जो इसका काम है वो बोलता है, इसके आगे आप बोलने की हिम्मत ही ना करें। जी तो वैसा है। So no, this is very very important, and you had because there are so many answers hidden in the your explanations that you had just given. It is a complete case study and a summary on its own. Whether it is transparency, whether it is courage with conviction, whether it is about an example of trustworthiness, whether it is an example of creating a kind of a template where subordinates can not only just get inspired but they also do their work properly. All these ideas are there, but or obviously then when you're moving forward in your career in next 1 to 1.5 years when a different posting would be there, definitely वो भी हम उस समय पे हम जरूर सुनेंगे और समझेंगे। लेकिन इन सारे इसके बीच में जब हम बात करते हैं कि भाई आपके वहां तो कोई ऐसा बड़ा मॉल नहीं है, कोई ऐसा कोई ऐसा बड़ा देयर इज नो बिग मैसिव कंज्यूमरिज्म नहीं है, उसके बावजूद भी पर्सनल लाइफ को सिंपल रखना, उसको एंगेज रखना और अपने आप को औरों के लिए रोल मॉडल रखना, ये इतना आसान काम नहीं है। ये जितना सुनने में अच्छा लगता है, हर कोई चाहता है कि मुझे ऐसा मौका मिले, लेकिन आप उसके लायक होकर आप उसको उसको आप पूर्ण कर सकें, ऐसा बहुत कम है। ऐसा है लेकिन कम है, हम ये कहना चाहेंगे। तो वो जो पर्सनल लाइफ है, जो जो मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, हम उसको कंप्लीटली निगेट नहीं कर सकते। तो आप उसको कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि काम तो है ही, और उसके और जहां पर स्ट्रक्चर पुअर होते हैं वहां पर काम अक्सर बढ़ जाता है। हम उल्टा सोचते हैं कि यार कुछ है नहीं तो हम फ्री हैं, जबकि इसका उल्टा है। इफ यू टॉक अबाउट सिटीज लाइक सूरत, त्रिची और इवन चंडीगढ़, वेयर यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड, दैट विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट टेरेन ऑल टुगेदर। तो जहां पर दिखता है कि नहीं है, वहां असल में काम ज्यादा होता है, क्योंकि वहीं आपका असली टेस्ट होता है। इस बार वहां पे सिस्टम सेट नहीं होता, सिस्टम बिल्कुल सेट नहीं होता, तो आपको सिस्टम एस्टैब्लिश करना पड़ता है एंड दैट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम, तो इट इज जी डिफिकल्ट। जी। तो आप कितना ये बात से एग्री करती हैं या मानती हैं कि एडवर्सिटी में तो सबका कैरेक्टर ऊपर निकल कर आता है, लेकिन जिसको पावर जब दी जाती है तो रियल कैरेक्टर पावर से आता है, कि अगर आपको पावर दी गई और तो आपका कैरेक्टर क्या निकल के आया? तो इस बारे में आप क्या मानते हैं? इस बारे में आपका क्या मानना है कि आप डू यू एग्री विद दिस, या आप कहती हैं नहीं नहीं भाई, डंडा रखो, या फिर आदमी मुसीबत में रहे तो आदमी ठीक रहेगा, पैम्परिंग मिलेगी
आपको पावर मिलेगी तो आप बिगड़ जाओगे। तो हाउ हाउ डू यू सी इट, व्हाट इज योर टेक? मेरा ऐसा मानना है कि अंदर से सारे ह्यूमन बींग्स बहुत अच्छे होते हैं जी और कोई ऐसा छल कपटी नहीं होता। समय समय की बात होती है और आप उसको कैसा माहौल दे रहे हो वैसा वो आपके साथ रिएक्ट करेगा। जी अगर आप उसको डंडा मार मार के चलाओगे तो वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। आप उसको थोड़ी इज्जत दोगे, उसके बारे में थोड़ा सा सोचोगे, उसके साथ एक अपनापन दिखाओगे, कंसर्न दिखाओगे, तो वो भी पलट के आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा। तो मैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने में बिलीव करती हूँ अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ भी। चाहे वो मेरा एक सिंपल कांस्टेबल है, आप किसी से भी बात कर लेंगे तो वो मेरे बारे में यही बोलेगा कि मैडम से जब भी मिलने के लिए बोला है, मैडम ने मिलने बुलाया है। उसने अगर मुझसे बोला है कि लिख के भेजा है कि आई नीड एन अपॉइंटमेंट, तो उसको अगले ही दिन या उससे अगले दिन का अपॉइंटमेंट दिया गया है। उसने जो अपनी बात बोलनी है वो बोल पाया है। अभी पीछे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, माई सिस्टर वॉज हियर, क्योंकि अब मेरा जाने का टाइम है तो शी हैड कम फॉर अ विजिट, तो हम कहीं घूमने गए हुए थे। तो वहां पे 3-4 मेरे स्टाफ थे जो आसपास थे। सो दे वर टेलिंग कि मैडम ने जिसने जहां पोस्टिंग मांगा, जिसने जहां पर्सनल रीजन के लिए रिक्वेस्ट करा कि हस्बैंड वाइफ को साथ भेज दें या मेरे पेरेंट्स उधर हैं मुझे वहां पोस्ट कर दें, मैडम ने आज तक एक भी बंदे को रिजेक्ट नहीं किया है, जी बेस्ट पॉसिबल एकोमोडेट करा है। तो नीचे स्टाफ में मैडम के लिए इतने रिगार्ड्स हैं कि काम तो हम सभी के लिए करेंगे पर मैडम के लिए हम दिल से काम करेंगे। और वही मेरा पर्पस भी था कि मैं एक इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप करूं। आई नो माई पीपल वेल। अगर किसी को ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम है, किसी का मैरिटल डिस्कॉर्ड है, सो आई नो देम कि इनका ये प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको ऐसा काम ना दिया जाए जहां वो और स्ट्रेस में आ जाए। अगर एग्री। उसका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं उसको रिलैक्स देती हूँ कि 4-6 महीने इसको लाइट ड्यूटी में डाल दूंगी, जी थोड़ा संभल जाएगा, उसके बाद इसको वापस खींच लेंगे हार्ड में। so that means we can fairly conclude that whatever ideas you had just shown and the principles that you are talking, they are the basic principles of public life. दे आर द प्रिंसिपल्स जो आपको क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में भी पब्लिक डोमेन में हेल्प करते हैं। यानी कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट की अगर मैं बात करूं, इवन अगर हम कोई रिपोर्ट जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की भी अगर हम बात करेंगे तो जो भी आपने बोला वो सारे आइडियाज उसमें हमें दिखाई देते हैं। वो सारे आइडियाज हम देखेंगे कि उसके अंदर आपने जो बोला, इट हैज बीन अमेजिंग, इट हैज बीन फिनोमिनल प्रैक्टिकल केस स्टडी दैट हाउ वन कैन लर्न, वन कैन गेट इंस्पायर्ड। ये कोई जोश टॉक वाली बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन टॉक, motivational talk, Josh talk, and there is a difference between being self and putting up what you are doing in everyday life. So इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूं कि क्या ऐसे स्पेसिफिक थ्रेट्स हैं जो इंटीग्रिटी और एथिकल स्टैंडर्ड्स जो सिविल सर्विसेज की हैं उसको उसको दे, व्हाट आई मीन टू से दैट, कैन यू प्लीज शेयर what are those specific threats to the ethical standards and integrity in civil services? ऐसे क्या थ्रेट्स हैं जो हाई स्टैंडर्ड्स और जो मोरालिटी, जो पब्लिक गवर्नेंस की जो प्रिंसिपल हैं, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी की आपने बात की बिना किसी सिटीजन चार्टर के, सिटीजन चार्टर है, पुलिस रिफॉर्म्स की भी हम बात करते हैं लेकिन वो पेपर पे ज्यादा है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो इन गिविंग ऑल दीज डायमेंशंस, तो ऐसे कौन से स्पेसिफिक थ्रेट्स हैं जो आप सोचते हैं जो एथिकल स्टैंडर्ड्स जो इंटीग्रिटी आपने शो किया ऐसे नहीं है, आप ऐसा कहते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हो ही वो ही, फिर अपने आप मानने के ऊपर है आपकी डिजायर क्या है। लेकिन फिर भी फॉर द फ्यूचर कैंडिडेट्स एंड फॉर एवरीबडी एल्स आल्सो बीइंग अ पब्लिक रोल मॉडल, कैन यू प्लीज शेयर विद अस, इट विल बी सो नाइस ऑफ यू। हम एज अ पब्लिक सर्वेंट जो भी काम करते हैं वो पब्लिक में दिखाई देता है, सब कोई उसको देख पाते हैं। और हमारा जो कंडक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज पीपल लुक टुवर्ड्स अस। तो हमारे कंडक्ट में प्रॉब्लम कब आने लगती है, जैसे हमारा काम है, या तो हम ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे या हम उसके प्रति ऑनेस्ट नहीं रहेंगे। कब नहीं रहेंगे? जब हमारे लिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और काम या पब्लिक कम इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जी तो जब मेरे को लगेगा कि मेरे को अपने लिए कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, मेरे को अपने लिए चीजों का संग्रह करना है, तो मैं गलत तरीकों से संग्रह करूंगी। जब मैं गलत तरह से संग्रह करूंगी तो किसी का तो हक मार के करूंगी। करेक्ट। मुझे अपने लिए सामान चाहिए, मुझे देना चाहिए अपने स्टाफ के लिए, पब्लिक के लिए, तो मैं रिसोर्सेज को गलत यूज कर रही हूँ। तो जो आपकी ग्रीड है ना, वो आपको सबसे पहले अपने रास्ते से भटका देती है। वो कहते हैं ना, ग्रीड का कोई एंड तो है नहीं, नीड का तो फिर भी एंड है। तो जब आप उस चीजों को बटोरने की लाइन में लग जाते हो ना, फिर सब खत्म होने लगता है।
क्योंकि तब आपकी इंटीग्रिटी चली जाती है, आपकी ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर वर्क चली जाती है, आपकी ट्रांसपेरेंसी चली जाती है, लोगों के प्रति काम करने की इच्छा चली जाती है, क्योंकि सिर्फ आप सेल्फ पर्पस देखते हो, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन देखते हो। जी, तो yes, इसीलिए very true. मुझे लगता है ये जो जी, जी, अपने लिए इकट्ठा करने की चीज है ना, ये हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इस सर्विस में आ गए हैं, हमारे पास बहुत है, मतलब इतना अच्छा है सब कुछ कि आप एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ बड़े आराम से क्लीन तरीके से बिता सकते हैं। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने रिसोर्सेज दिए हैं, आपको जरूरत ही नहीं है। इंसान सोचता है कि मैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए जोड़ दूं, मैं अगली से अगली पीढ़ी के लिए जोड़ दूं। क्यों जोड़ दो? हमने अपनी दम पे खड़ा करा है, वो भी करेंगे अपने दम पे। क्या हमें विश्वास नहीं है हम अपनी आगे वाली जनरेशन को खड़ा कर पाएंगे? तो फिर हम पे लानत है। अब मैं सोचूं आज मैं अपने बच्चे के लिए दुनिया भर की प्रॉपर्टी बना के चली जाऊं, क्यों बना के चली जाऊं? मैं नहीं बना के जाऊंगी। मैंने अपने दम पे खड़ा करा है, तो आज मेरी इज्जत है, मैंने अपने आप को स्टैब्लिश करा है। मैं चाहूंगी कि मेरी आने वाली जनरेशन मुझसे अच्छा अपने को स्टैब्लिश करे अपने दम पे, लोग उसको भी उसके नाम से जाने। तो संग्रह करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी लाइफ जीने के लिए बहुत दिया है। बिल्कुल, जो आपने अभी पॉइंट्स बोले, they are the one, because corruption is the manifestation of the failure of core values in the society. Yes. It is the manifestation, because it is not poverty which is leading to corruption. There is no dearth of instances where affluent and powerful people indulge in corruption in a big way. आज ही के न्यूज़पेपर में हम तेलंगाना, if I'm not wrong, it was Telangana or Andhra Pradesh, where special commissioner and even one more very senior officer, they had been put behind bars. Or recently आपने, if I'm not sure whether you are aware or not, in Andhra Pradesh there was a big instance where senior IPS officers in the previous government, they went on to misuse their power, and they went beyond the boundary line and created hurdles for a known personality on behalf of some other builder or some other kind of person. So there is so much, there is a thin fine line which you have been talking, and this is all what is reflected in the syllabus. If I speak about the examination, it is the syllabus of the examination which is the guiding point. You have shown all the values, you have given us the idea whether it is conflict of interest, whether it is effective utilization of public funds which are crucial to meet developmental goals, or whether we speak about how to go beyond your call of duty, how to move forward, and also to take care of the ethical dilemmas. All these situations, all these ideas, you have very beautifully showcased in a very true sense, without exaggeration and without putting them in the way they should not be. So I would ask if any one of you have any questions to please share, and we will conclude by having a kind of you can say concluding statement by ma'am itself, and then we will be learning, we'll be moving forward with these ideas time and again, so that the goal is achieved, so that the dreams are fulfilled. Mansi? So I don't have any question. Okay. Ashik? Thank you, ma'am, for taking out of your time, and I was inspired by your idealism as well as the dedication to the service. But I have one question regarding that. Do you have any time in your life you have faced any crisis regarding the work from within? If it is like this or like this regarding the work. Crisis in the sense? Motivation. Every time you were motivated all the time, or even you have faced certain kind of crisis in motivation? Okay. Sometimes it happens when things don't go the way you plan. For example, suppose I had come to Andaman Nicobar Islands from Delhi. I wanted to come to Andamans as a hard area posting. I was there in Port Blair for almost a year. After that, I was sent to a remote district called as Northern Middle Andaman, where I am presently posted. So initially, me and my husband, we both are in service. We were posted together at Port Blair. And all of a sudden, some things happened and he was sent to a different district, another remote district called as Nicobar. And I was sent here to Northern Middle. So overnight, things happened, things changed. So it is not easy for anybody to grasp it.
that today you are staying together, you have come on outside posting thinking that you will stay together, you have a small child, you will grow him up together and work also. Yes. But somehow things have gone wrong and you have been separated almost like it feels like you are living in different planets. Nicobar and Northern Middle are so far, not even connected by road. Mhm. So, and the tag that you are the first lady officer of Northern Middle Andaman district because it is a very remote and difficult district. So all these things definitely play a role. They come to your mind, they disturb you, but at the next moment, you have to get that courage. You know, whatever happened had happened for good, and wherever I'm going, I will do my best. So with that thought, I came here and I started working on all these agendas which I have discussed with you, and it went on very well. Today, if I look back and say it was one of the very good things which had happened to me. So it is all momentary. Sometimes what happens which we have not planned definitely shakes you a little, but you have to come out the very next moment and perform. I agree with that. And we believe and we would be, more than happy, and also it will be a great honor you continue on the same lines, creating the legacy which Honorable Sardar Vallabhbhai Patel, he went on to see a vision when India got independence. And even before that, the Imperial Police Service, it also had values, but those values were colonial, those values were inhumane. इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने रिसेंटली जो भारतीय न्याय संहिता और जो नए कानून आए उनको भी बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही सीमलेस तरीके से आपने अपने वर्क कल्चर में इंटीग्रेट किया. We had opportunity to listen that also when you had a session with Kiran Bedi ma'am, which was also broadcasted all over India, like the way we are also going to do. So we believe and we earnestly think that keeping it simple, taking up the challenges, moving forward, and having a great self belief can make things happen. That's how I would like to conclude it. From my side, these are the words. If you want to add something, please. It was wonderful to listen to you and talk to the young civil service aspirants. And I look forward these people join the services as soon as possible. And country needs you. And the last word which I would like to say is अपने पे विश्वास रखो, positive रहो, और mind में एकदम clarity होनी चाहिए कि हम सर्विस में आना चाह रहे हैं, क्यों आना चाह रहे हैं, वो पैशन होना चाहिए. दैट पैशन विल टेक यू वेयर एवर यू वांट टू. वो पैशन कंटिन्यू होना चाहिए, वो पैशन खत्म नहीं होना चाहिए. कई बार सर्विस में आने के बाद वो पैशन खत्म हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए. यू शैल ऑलवेज बी पैशनेट. अगर आप उस फायर के साथ आए हो तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी डिसीजन लेने में, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई क्राइसिस फील नहीं होगा, कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होंगे, कभी डायलेमास नहीं आएंगे. यू विल सेल थ्रू वेरी कंफर्टेबली एंड यू विल अर्न अ नेम फॉर यू. Wonderful, great. Once again, we all thank you, and we all want to say that these inspiring words, this code of conduct which we had uh, discussed, we all will try to uphold these values and continue with the same passion, same dedication, honest, and truthfulness. Thank you very much.